Hello everyone, welcome to the next part of the series of lectures on logarithms. So it's a huge topic. We understood the basics of this topic in the first part of the video. In the second part, we are going to, I think, finish the whole topic if we can. There are so many points to touch on this topic, and we can go as deep as we want, and we can take so many examples. But still, if you consider logarithm, the kind of information which I have given you till now, and which I will be giving further in this series, it is, let's say, around, you can say, 20 to 30% of the whole topic of logarithm. So that is my limitations, or you can say restrictions. The reason being, this topic is not included in the syllabus of class 11th or 12th in your CBSE board. Second thing is, they have talked about logarithmic functions and exponential functions in the chapter relations and functions, but that was also very, very brief. So not all the laws or properties of logarithm were covered, and the details were not talked about that much. Although we hear about logarithm, we come across logarithm, we have questions based on logarithms in class 11th and 12th in various topics, in physics also, in mathematics also, but still somehow this topic stays ignored, and whenever log comes in front of a child, he gets afraid. So I took this little effort to get a little comfortable with the concept of logarithm for all of us, and try to understand it in a little better way. Then little better is always recommended than nothing. So it is like logarithm is taught at a level of nothing by your school, or generally you can say. But in these lecture series, I try to talk um, in a more relaxed way about this topic, right? I'm not in a hurry because I don't want to be in a hurry. This topic is such. Let's start with it and look at what we are going to study today. So first, let's talk about exponential function. But here you see two new words, growth and decay. Exponential growth and decay functions. So what do you mean by growth and decay? A growth function, a growth function is generally known as, in our textbooks and our syllabus, it is known as increasing function. Increasing function. What is an increasing function? Increasing function is such a function in which if you increase the domain, it results in increasing of range. If by increasing the domain, the range is also increasing, then this function will be increasing function, which is written as growth function here. Growth. I'm sorry. The second one is decay function. Decay. To decay means to decompose or to reduce. And decay function is nothing but reducing function. In reducing function, as the name suggests, if you increase the domain, it results in decreasing range. The range decreases on increasing the domain. That is reducing function or decreasing function. Decreasing or reducing functions. Okay, so we are today studying the graphical aspect of both exponential and logarithmic function. But for understanding the graphical, see, the topic today we are studying is logarithms. But for understanding the graphical perspective or point of view,
of logarithm. First, you should be comfortable with the graphical perspective of exponential function, because exponential function is the function from which logarithmic function is, you can say, translated into. Logarithms are, you can say, another form of exponential function. They are in fact inverse of exponential function. So if you're not comfortable with exponential function, you cannot learn logarithmic function. So exponential, let's say that we have an exponential function f of x is equal to b raised to x. So what is x? X can be any real number. X can be any real number. And b, the base, is always greater than 0 and it is never equal to 1. We already know about the range and domain of exponential and logarithmic function. So here the range, that is b raised to x, will always be a positive number greater than 0, right? F of x's value or range of exponential function will be always a positive number greater than 0. It can never be equal to 0. The range can never be equal to 0. Yes, one more thing is the base of exponential function is always greater than 0 and never equal to 1, and x, that is the power of exponential function, will always be any real number. Okay, then your number looks like this, sorry, your graph looks like this. Okay, now the graph has two parts, one which you see in this orange color and one which you see in the green color. The orange color graph is a specific graph when b is greater than 1, the base is greater than 1. When your base is greater than 1, you get an exponential growth function, that is increasing function. मतलब अगर तुम्हारा बेस 1 से बड़ा है तो क्या होगा, उसके ऊपर कोई भी पावर लगाओ, तुम कोई भी रियल नंबर का पावर लगाओ, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें जो आंसर मिलेगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। वो बात तो सही है, वो तो आंसर तो हमेशा ही पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 रहता है, लेकिन ये आंसर विथ द वैल्यू ऑफ with the value of x, this answer will go on increasing. ठीक है, अब मैं if I talk about the values of x, let's talk about the values of x. okay, तो x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, b ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 नंबर के लिए, ग्रेटर देन 1 जब रहेगा b को फिक्स कर देते हैं, सपोज b को ले लेते हैं हम लोग 2, ठीक है, बी को ले लेते हैं 2। देखो यहाँ पे तुम्हारा बेस क्या है 2, और उसके ऊपर हमने किसी भी रियल नंबर का पावर लगा दिया। ठीक है, अभी b ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, b इज ग्रेटर देन 1। अब क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है इसका जो आंसर है वो कैसा रहेगा, वो x की वैल्यू के साथ इंक्रीज होता हुआ रहेगा। मतलब x की जितनी बड़ी वैल्यू डालोगे उतना आंसर तुम्हें, मतलब b रेज टू x की वैल्यू उतनी बड़ी मिलेगी, x की जितनी छोटी वैल्यू डालोगे उतना आंसर तुम्हें छोटा मिलेगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 डालोगे, 0 हो सकता है x, यस हो सकता है, पावर 0 हो सकता है, तो तुम्हें आंसर 1 मिलेगा, बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ठीक है, x की नेगेटिव नंबर डालोगे, वैल्यू डालोगे नेगेटिव वैल्यू, तो तुम्हें आंसर छोटा मिलेगा। किससे छोटा, मतलब 0 और 1 के बीच में मिलेगा। लेकिन क्या आंसर कभी 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। x की वैल्यू तुम कुछ भी डालो, x की वैल्यू जितनी बढ़ाओगे आंसर y की वैल्यू उतनी बड़ी मिलेगी। ये कौन सा फंक्शन दिखा रहा है पता है तुम्हें? ये वाला, दिस वन। ये जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई, दैट इज व्हेन b इज ग्रेटर देन 1, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करेगा। अब मैं तुम्हें ये सेम चीज ग्राफ पे प्लॉट करके बताऊंगा, सो दैट योर आइडिया बिकम्स क्लियर रिगार्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये हमारा लेआउट है ग्राफ का, ठीक है। नाउ इन दिस होल लेआउट आई हैव रिटन सर्टन इक्वेशंस। यहाँ पे मैंने लिखा है a रेज टू x, ठीक है।
लेट मी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ a रेस टू x. अगर a 0 रहेगा तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा पता है? कैन यू सी दिस रेड लाइन ओवर हियर? व्हाट डज दिस रेड लाइन रिप्रेजेंट? This red line represents x-axis, but only part of x-axis. So basically, जो आंसर है उसमें y की वैल्यू 0 ही रहेगी. अच्छा, x की वैल्यू तुम नेगेटिव भी डालोगे तो भी y की वैल्यू तुम्हें 0 ही मिलेगी. मतलब 0 से बड़ी या 0 ही वैल्यू, सॉरी, y की वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी. x की वैल्यू तुम कुछ भी डालो, y की वैल्यू तुम्हें 0 ही मिलेगी. ठीक है. अच्छा, अभी मैं इसको, ये स्लाइडर को चेंज करता हूँ. लेट्स सी. ओके, सो मैंने ये स्लाइडर को 1 पे लाया है. देखो, बेस कभी 1 नहीं हो सकता. अगर 1 होगा तो क्या होगा पता है? y की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी. y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे दिख रही है तुम्हें y की वैल्यू 1. ठीक है. तो ये केस में हम लोग लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज बहुत सारी यूज नहीं कर सकते. सो वी आर नॉट गोइंग टू कीप द बेस एज 1. लेट्स इंक्रीज द बेस more than 1. Let's keep it at 2. See, this is what I was talking about. This is what I was talking about. This is your ideal exponential function with, this is your ideal exponential growth function or increasing function with base greater than 1. That is, base is 2 here. And in this function, as you can see, कि x की अलग अलग वैल्यू है मेरे पास. ये वैल्यूज को मैं बढ़ाता हूँ, मेरी डोमेन को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ. तो y देखो कहाँ जा रहा है. मतलब y, ये सपोज दो पॉइंट कंसिडर करते हैं. Let me consider one point over here. ठीक है. यहां पे x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू क्या है? 0.25. अब मुझे x की वैल्यू बढ़ानी है. ठीक है, ये देखो, ये बढ़ा दिया x की वैल्यू. अब x की वैल्यू क्या है? -1. y कितना हो गया? 0.5. चलो x और बढ़ाते हैं. ये बढ़ा के मैंने कर दिया 0. अब x की वैल्यू 0 है, y और बढ़ गया 1 हो गया. चलो और बढ़ाते हैं. अब x की वैल्यू हो गई 1. ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. तो x जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे y भी बढ़ता जा रहा है. कैन यू सी दैट? सो दिस इज अ टिपिकल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बट इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन. और इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन? मैंने तुम्हें बताया, जब तुम्हारा बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो. और उसका शेप कैसा होगा ये यहाँ पे ग्राफ में देख लो. ऐसा शेप होगा. इसका कोई नाम नहीं है, इसको सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम से बुलाते हैं. बेस क्या है इसमें? 2 है. ठीक है, चलो बेस को हम लोग 1 के नजदीक लाते हैं. या फिर भी जो शेप है, अगर तुम ओवरऑल शेप देखोगे तो वही रहा. शेप वही रहा ओवरऑल. ठीक है, अगर जूम आउट करते हैं तो देखो वही सेम शेप मिलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा. अच्छा, अब इसको अगर 1 से और बढ़ाते हैं हम लोग तो देखा क्या हो रहा है? ये जो ये जो कर्व है वो स्टीप होता जा रहा है. स्टीप और स्टीप कर्व हो रहा है. और यहाँ पे कर्व फ्लैट हो रहा है. जैसे जैसे 1 के करीब आ रहा है कर्व फ्लैट हो रहा है. यहाँ पे स्टीप हो रहा है. दैट इज ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द रेंज विच वी आर गेटिंग फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y. अलग अलग वैल्यू फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, आई एम सॉरी. अगर तुम अलग अलग वैल्यू लेते हो x की, दैट इज योर डोमेन, तो तुम्हें जो y मिलेगा, दैट इज योर रेंज, विल बी एज हाई एज पॉसिबल. x जितना बढ़ेगा y उससे एक्सपोनेंशियली ज्यादा बढ़ेगा. ठीक है, चलो अब हम करेंगे कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट. लेट्स अगेन कम बैक टू, आर ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज a इज इक्वल टू 1, जो पॉसिबल नहीं होता. अब मैं क्या करूंगा? देखो, बेस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. b इज नेवर इक्वल टू 1. सॉरी, b इज नेवर स्मॉलर, नेवर इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन 0. b इज नेवर नेगेटिव. b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. तो 1 और 0 के बीच में तो हो सकता है ना बेस. जब 1 और 0 के बीच में रहेगा बेस, तो ये जो फंक्शन है कैसे चेंज होता है मुझे ये दिखाना है. ठीक है, सो यहां तक हम लोग पढ़ रहे थे. ये तुम्हारा जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन था.
जब बेस था 2.2, दिख रहा है तुम्हें? बेस की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, ए की वैल्यू 2.2। अब देखो, ये देखो कैसे ये, सी हाउ इट शिफ्टेड फ्रॉम बेस बीइंग ग्रेटर देन 1 टू बेस बीइंग स्मॉलर देन 1। जब बेस स्मॉलर देन 1 हो गया तब क्या हुआ? सो वेन एवर द बेस इज स्मॉलर देन 1, द लार्जर वैल्यूज ऑफ एक्स यू पुट in the power, the smaller the value of the function becomes. And the function, this such kind of function where the domain is increasing but the range is decreasing, is known as decreasing function. So the exponential function behaves like a decreasing function when the base is between 0 and 1. तो तुम बोलोगे सर बेस को 0 करेंगे तो क्या हो? ठीक है, देखते हैं, चलो। ये ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने ये क्लास रखा है। देखो, जैसे ही मैं बेस को और छोटा कर रहा हूं ये ग्राफ स्टीप हो रहा है, देखा? मुझे देखना है 0 पे क्या होता है। 0 पे जब बेस 0 होता है तो वापस ये ग्राफ कहां पे आ जाता है? एक्स एक्सिस पे आ जाता है, बिकॉज 0 रेज टू एनीथिंग इज 0। ठीक है, सो व्हाट अबाउट बेस को अगर नेगेटिव करेंगे? देखो, मैं बेस को नेगेटिव कर रहा हूं और यहां पे कोई ग्राफ में हलचल नहीं है। मैं जूम आउट करके भी दिखा सकता हूं, कोई ग्राफ नहीं बन रहा है। नेगेटिव बेस के लिए कोई ग्राफ बन रहा है क्या? कुछ नहीं बन रहा है। नेगेटिव बेस के लिए ये कोई ग्राफ कुछ बन ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हारा बेस नेगेटिव होगा और उस पर तुम कोई भी रियल नंबर का पावर लगाओगे तो यू नो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव नंबर के पावर पे एग्जिस्ट करते ही नहीं है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। क्या है डेफिनेशन? The definition of exponential function tells you that the base is always greater than 0 and it is never equal to 1. Then only exponential function जो उसका जो शेप है वो रिटेन करेगा। ठीक है, नहीं तो वो स्ट्रेट लाइन जैसा बन जाएगा अगर वो उसको 1 बना दिया तो, और 0 बना दिया है तो वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, और 0 से स्मॉल कर देंगे तो वो फंक्शन गायब हो जाएगा। फंक्शन या उसका ग्राफ बोल सकते हैं, वो गायब हो जाएगा। नाउ यू अंडरस्टैंड। अब तुम्हें समझ में आया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है एग्जैक्टली अच्छा, अभी कुछ लोग यहाँ पे सोचते होंगे कि ये तो वाई एक्सिस से मीट कर रहा है यहाँ पे लाइन। ये मीट नहीं कर रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि 9 के आसपास कहीं पे मीट कर रहा है या 10 पे मीट कर रहा है, तो लेट मी जूम इन बिटवीन 9 एंड 10। दिख रहा है गैप? तो तुम इसको बोलते हैं एसिम्पटोट। इसको मैंने पहले भी बोला था, इसको एसिम्पटोट बोलते हैं। और ये फंक्शन वाई एक्सिस को कभी नहीं मिलता। ये फंक्शन, सॉरी, एक्स एक्सिस को कभी नहीं मिलता। एक्स एक्सिस को कभी नहीं मिलता मतलब y की वैल्यू 0 कभी होती ही नहीं है। y की वैल्यू कभी 0 नहीं होती मतलब ऐसे फंक्शंस की रेंज कभी 0 नहीं होती है। रेंज मतलब ये फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू मैं बताता हूँ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये जो b रेज टू एक्स है ना, उसमें अगर b को तुम ग्रेटर देन 0 रखो, नॉट इक्वल टू 1 रखो, और x को कोई भी रियल नंबर ले लो, इसका रेंज कभी भी 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, जो हमने पहले देखा था। आई डोंट वांट टू गो देयर, बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए ढूंढना, बट हमने देखा हुआ है पहले। ठीक है, तुमने लिखा भी होगा, नोट भी लिया होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज और डोमेन क्या होता है। ठीक है, अभी समझ में आया एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है। तो तुम सोच रहे होगे कि ये डिक्रीजिंग होता क्यों है 0 और 1 के बीच में अगर बेस लेंगे तो मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, शायद ये तुम्हारा डाउट, जो ट्रिवियल डाउट है बहुत, कि अगर बेस 0 और 1 के बीच में हुआ तो ये फंक्शन ऐसा क्यों अजीब बिहेव करता है, डिक्रीजिंग क्यों होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं। let me take an example of a base between 0 and 1. Let's say 0.1. 0.1 is greater than 0 and smaller than 1. ऐसे बेस पे मैं पावर पहले लगाता हूं 1, तो आंसर क्या आएगा? 0.1। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं पावर इंक्रीज करता हूं 2, 0.1 का स्क्वायर क्या होता है? 0.01। मैं पावर लगाता हूं 3, क्यूब क्या होता है? 0.01 था ना, 0.001 हो जाएगा यहाँ पे। तो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मेरा बेस फिक्स है,
क्या है 0.1, मतलब ये वैल्यू है b की, फिक्स कर दी मैंने। ये मेरा x है, ये जो 1 2 3 दिख रहा है ये x है, मैं x बढ़ा रहा हूं। और y क्या है पता है? y इज दिस, ये y क्या हो रहा है? कम हो रहा है। x में येलो में हाईलाइटेड जो नंबर है, पावर जो है बेस का, वो बढ़ा रहा हूं, लेकिन y जो आंसर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो कम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये नंबर डेसिमल्स में है और 1 से छोटा है। 1 से छोटे डेसिमल नंबर्स के लिए ऐसा ही होता है, उसका पावर जितना बड़ा हो वो नंबर की वैल्यू उतनी कम हो जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल रेसिप्रोकल जैसा है, जितना बड़ा नंबर उसका रेसिप्रोकल उतना ही छोटा। ठीक है, तो मतलब अगर नंबर, उसी को अगर मैं अलग तरीके से बोलूं, सो आई कैन से दैट इफ द नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1, if the number is between 0 and 1, greater its power, lesser will be its value, lesser will be the value of that number raised to that power. Clear? Let's go ahead. Okay, the next is logarithmic function. Now let's go to the graph and understand the logarithmic function for different bases. Okay, let's go to the graph. First let me get rid of this, let me bring it to 1, and let me get rid of this exponential functions graph, and let me zoom in. Right, so now we have a layout or a chart of you can say your Cartesian plane. Now what is a raised to x? What is a raised to x? Let me again give you a quick revision of a raised to x. ठीक है, a raised to x is equal to let's say y. ठीक है, so log of y to the base a is equal to x, मतलब a raised to x को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली मेरा जो लॉगरिदमिक फंक्शन बनता है अब, वो क्या हो जाएगा? विद द बेस a, और उसका आंसर क्या हो जाएगा? x। अच्छा, लेकिन जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, अगर मैं y की जगह x भी रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो तो वेरिएबल ही। ठीक है, अच्छा यहाँ पे y क्या होगा? y मेरा डोमेन होगा, और x क्या होगा? x मेरी रेंज होगी। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द लॉगरिदमिक फंक्शन इन द ग्राफ। log ऑफ x टू द बेस है, मैं इधर y भी लिखता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं y लिख देता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, जस्ट ओके, क्या तकलीफ है भाई आपको? ट्राई एडिंग x टू द बिगिनिंग ऑफ द इक्वेशन। ओके, x इज इक्वल टू, अब सही है? खुश हो आप डेस्मोस भैया? ठीक है, ओके, सो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y टू द बेस ए रेज टू x का इनवर्स है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ट्रांसलेशन है लॉगरिदमिक फॉर्म में। ठीक है, ओके, क्या तुम्हें कोई ग्राफ दिख रहा है? यहाँ पे स्लाइडर पे 1 है। अच्छा, मुझे तो नहीं दिख रहा। चलो इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। चलो, हाँ, अब कुछ नजर आया, अब कुछ नजर आया। 1 पे तो ये गायब ही हो जाता है, मतलब 1 पे गायब क्यों हो रहा है? ये लॉगरिदमिक फंक्शन बेस 1 के साथ एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता? तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ लॉगरिदमिक फंक्शन की डेफिनेशन देखो। लॉगरिदमिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है? लॉगरिदमिक फंक्शन की डेफिनेशन हमें यह बताती है कि बेस कभी 1 नहीं हो सकता, बेस 0 और 1 के बीच में हो सकता है, बेस 0 से बड़ा हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। तो 1 पे लॉगरिदमिक फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि लॉगरिदम्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज और रूल बेस 1 के साथ हम नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो 1 पे जब बेस 1 रहेगा, तुम्हारे सामने बेस 1 रखा है मैंने, यहाँ पे लॉगरिदमिक फंक्शन कुछ नहीं दिखा रहा। ठीक है, चलो बेस को पहले 1 से बढ़ाते हैं। लेट्स इंक्रीज द बेस। Okay, the logarithmic function starts in a very funny shape, but if you see it, the shape looks exactly like your
एक मिनट, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ की है हमने। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हम्म, मुझे लगता है एक्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स डाल के चेक करता हूँ। यहाँ पे एक्स डाल दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया वाई। हाँ ये है, मुझे लग रहा है, तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा डेस्मोस है उसका ग्राफिंग कैलकुलेटर, वो y के टर्म्स में जो इक्वेशंस है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब तुम्हारी डोमेन हमेशा x ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी डोमेन x है, यहाँ पे लॉगरिदमिक फंक्शन है जिसकी डोमेन x है। तो फंक्शन लॉगरिदमिक हो या एक्सपोनेंशियल हो, तुम इसकी डोमेन को x ही रखो। तुम्हें शेप दिख रहा है? आर यू सीइंग द शेप ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन? ठीक है, ये बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसके बीच में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन लॉगरिदमिक फंक्शन की रेंज बन गई और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज लॉगरिदमिक फंक्शन की डोमेन बन गई। यही है प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो लॉगरिदमिक फंक्शन का शेप ये है। तो लॉगरिदमिक फंक्शन को के बेस को जब मैं बढ़ाता हूँ, 1 से ज्यादा करता हूँ, तो इसका शेप ऐसा हो जाता है और फ्लैट हो गया ये। देखो यहाँ पे स्टीपनेस उसकी बढ़ रही है, ठीक है, बट यहाँ पे फ्लैट हो रहा है। फॉर अ बिगर बेस इट्स बिकमिंग फ्लैटर। अच्छा, व्हाट अबाउट at 1 it becomes completely invisible, and then for numbers between 0 and 1, it it completely reverses itself. It completely reverses itself. And what about negative numbers? It disappears. So the base cannot be negative, the base cannot be 0. The base can be anything between 0 and 1, where the function will look like this, and the function will look like this for base is greater than 1. ठीक है, तो लोगैरिथमिक फंक्शन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है, तो ये भी तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। तो कोई बता सकता है मेरे को, मतलब कोई अपने आप को बता सकता है कि फॉर बेसिस ग्रेटर देन 1 हाउ इज लॉगरिथमिक फंक्शन? आई विल टेल यू। सी 1.1 पे मैं यहाँ हूँ, ठीक है, x की वैल्यू, जो x की जगह पे मैं वैल्यू डाल रहा हूँ उसको मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, x की जगह मैं वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। x की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। अच्छा, थोड़ा a को कम कर देता हूँ। x की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन ये जो इंक्रीज है फंक्शन का विथ इंक्रीजिंग a की वैल्यू बढ़ने से, ये जो इंक्रीज है इसका रेट कम हो जाता है। द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ y, दैट इज रेंज, that is slower. The rate of increase of value of range is slower for greater values of a. I don't know how easier for you it is to understand that the value of y is increasing, range बढ़ रही है a को बढ़ाने से, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही। ठीक है, अच्छा, what about number smaller than 1? अब क्या है ये? अब ऐसा हो रहा है कि एक मिनट, यस, हाँ, अब ऐसा हो रहा है इस फंक्शन में x की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, x की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ 2.55 ये, और y की वैल्यू देखो साइड में क्या हो रहा है, y की वैल्यू कम हो रही है। सो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन भी 0 और 1 के बीच में क्या है, डिक्रीजिंग है, और 1 से ग्रेटर नंबर के बीच में क्या है, 1 से ग्रेटर नंबर के लिए क्या है लॉगरिदमिक फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक सिमिलैरिटी हमें देखने मिलती है लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ओके, अब तुम समझ गए कि इसका शेप कैसा है। मैं तुम्हें यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। सी, दिस इज हाउ द शेप लुक्स लाइक। अच्छा, लॉगरिदमिक फंक्शन हमेशा एक्स एक्सिस पे 1 पे पास करेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है क्योंकि
एक्स एक्सिस मतलब log ऑफ 1 हमेशा 0 होता है। x की जगह मैं 0 डालूंगा, एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1, और उसके लिए y का रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या आता है, 0। मतलब log ऑफ 1 इज ऑलवेज, log of 1 is always 0, log of 1 with any base is always 0, log of 1 with any base is always 0। इसको नोट कर लेना यार। देखो यहाँ पे लेट मी शो यू। हाँ, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये 1 से पास हो रहा है। अब देखते हैं हमें हमेशा 1 से पास होता है कि नहीं। यस, हमेशा 1 से पास होता है। मतलब क्या है, log ऑफ 1, ये जो x है जिसकी जगह में अगर हमेशा मैं 1 रखूंगा तो आंसर 0 ही आएगा, बेस कितना भी बढ़ा लो या कम कर दो। देखो सही है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, ये शेप्स है, ये शेप्स डिस्कस करना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड एनी फंक्शन इन डेप्थ। ठीक है, ग्राफ के शेप्स डिस्कस करना एसेंशियल है। नाउ द कंपैरिजन बिटवीन लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेट्स कंपेयर ऑन द ग्राफ। Okay, let's keep our base at 2. Let's keep our base fixed at point 2, and let's also point, wow, the exponential function. Now both functions are plotted together. Can you see a striking similarity between both the functions? They are both like mirror images of each other. Don't you see that? You know why it is? Why it is the case? अच्छा, यहाँ भी तुमने ये नोटिस किया होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज है ना वो हमेशा 1 होती है। मतलब अगर तुम डोमेन को 0 बनाओगे, अगर x की जगह पावर में 0 डालोगे, एनीथिंग रेज टू 0 विल ऑलवेज गिव यू 1, इसलिए ये 1 के ऊपर फिक्स रहता है। और लॉगरिथमिक फंक्शन में log ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0, इसलिए ये 1 पे लॉगरिथमिक फंक्शन फिक्स है। अब देखो कंपैरिजन करने में कितना मजा आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें, है ना। ठीक है, और एक चीज मैं लिखता हूं, y equals x. You know what is y equal x? It is the mirror line between logarithmic and exponential function. So logarithmic function and exponential functions are inverse functions of each other, and and y is equal to x, that's a straight line, acts, y is equal to x कौन सा फंक्शन है, हमने पढ़ा था फंक्शंस में, आइडेंटिटी फंक्शन। सो आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है, इट एक्ट्स एज अ मिरर लाइन फॉर लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये प्रूव करता है कि अगर आइडेंटिटी फंक्शन लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मिरर लाइन है, तो इसका ये मतलब है कि देखो ये पॉइंट पे मैं जरा एक पॉइंट यहाँ पे एक, हाँ, व्हाट इज दिस, एक मिनट जूम इन करते हैं। ये पॉइंट है 1,1, सॉरी ये मूव हो रहा है, हाँ, बट ये जो पॉइंट है, एक मिनट लेट मी राइट यार, इतना क्या है 1,1, कैन यू सी दिस पॉइंट 1,1? यस। सो 1,1 फॉर दिस ग्रीन लाइन, दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है 1,1? इसका मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन में जब डोमेन 1 होती है तो रेंज 0 होती है। आई एम सॉरी, रेंज भी 1 होती है। आई एम सॉरी। आइडेंटिटी फंक्शन के लिए जब डोमेन 1 होती है तो रेंज भी 1 होती है। ठीक है, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, रेड वाले फंक्शन में, रेड वाले ग्राफ में, जब तुम्हारी डोमेन 0 है तो रेंज 1 है, और उसका उल्टा तुम्हारे पर्पल वाले लाइन में, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ में, हमें ये समझ में आ रहा है जब तुम्हारी डोमेन 1 होती है तो रेंज 0 होती है। तो ये प्रूव करता है कि ये जो फंक्शंस है logarithmic और exponential function which are equidistant from the identity function graph are exactly inverse of each other। और ये तुम यहां भी देखोगे, ये वाले पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है, 2,2, 2,2, ठीक है। हर एक जगह पे तुम ये नोटिस करोगे। समझ में आया?
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, कहाँ पे रिड्यूसिंग कहाँ पे इंक्रीजिंग होते हैं, ये उनका ग्राफ कैसा दिखता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो एक्स एक्सेस से और वाई एक्सेस से रिस्पेक्टिवली लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ से पास करते हैं और उसका मीनिंग क्या है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की डिटेल में। ज्यादा तुम्हें अगर नॉलेज चाहिए इसके ऊपर तो खेलो ग्राफ से, ये साइट पे जाओ डेस्मोस पे और खेलो, ठीक है, करो इसमें ग्राफ बनाओ, अलग अलग रेंज डालो, डोमेन डालो, तो तुम्हारी क्लैरिटी तुम्हें और मिलेगी। और लॉगरिदम के बारे में हम लोग और भी डिस्कस करने वाले हैं, ये लेक्चर में तो करने ही वाले हैं, लेकिन आगे भी हमें बहुत कुछ सीखना है फंक्शंस के बारे में इनफैक्ट, तो ही हमारी क्लैरिटी हमको मिलेगी, ठीक है। तो 1,1 चला गया, y इज इक्वल टू एक्स हटाओ, इसमें से मुझे आई थिंक कुछ भी नहीं चाहिए अभी, ठीक है। चलो लेट्स लुक एट समथिंग एल्स। मेरे पास और एक फंक्शन है, इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू एक्स। डू यू सी दैट e रेज टू एक्स? अच्छा, साथ में लेट मी प्लॉट a रेज टू एक्स। दोनों कितने सिमिलर है और दोनों 1 से पास होते हैं, मतलब अगर x की वैल्यू में 0 डालू तो एनीथिंग रेज टू 0 1 होगा, e रेज टू 0 भी 1, a रेज टू 0 भी 1। तो ये e है क्या, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये है यूलर्स कांस्टेंट, ये एक इरेशनल नंबर है और इसका क्या यूज है, ई बार बार क्यों यूज होता है और ये साइंटिस्ट को इतना पसंद क्यों है ये नंबर। देखो ई जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यूज होने वाला ई है, ये बहुत सारे अपने सराउंडिंग में, अपने अराउंड बहुत सारी चीजों के क्वांटिटेटिव मीनिंग को एक्सप्लेन बहुत ही इजीली और नेचुरली एक्सप्लेन करता है। ई ये जो नंबर है, मैजिकल नंबर है ये ई, ठीक है। ये इसका मीनिंग क्या है, ये कहां से आया, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। बट उसका ग्राफ और तुम्हारा जो नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए रेज टू एक्स, जहां पे ए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने 2 रखी है, ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है, ए कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन ए की वैल्यू जब मैंने फिक्स कर दी, ठीक है, तो ई ई क्या है, इस ई की वैल्यू क्या है, ई होगा 2.718281828 एंड सो ऑन, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऐसा दिखता है ई जैसा। अच्छा, अब नेचुरल लॉगरिदम क्या होता है, तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, मतलब यही ई रेज टू एक्स को मैं अगर लॉगरिदमिक लैंग्वेज में लिखूं तो बेस चेंज हो जाएगा बस। पहले बेस क्या था तुम्हारा, बेस ये यहाँ पे जो अलग अलग मैंने नंबर लिए थे 1.7 या जो भी 2 या 10 या जो भी मान लो, ये बेस में बनाता था, बट अब बेस फिक्स हो गया, वो क्या है ई। तो नेचुरल लॉगरिदम बोलते हैं इसको, नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। इसको और एक नाम दिया है, लेट मी शो यू दैट। इसका और एक नाम है एल एन, एल एन, एल एन मतलब नेचुरल लॉगरिदम टू द बेस ई, यहाँ पे फिक्स है एल एन एक्स, दिख रहा है तुम्हें एल एन एक्स, क्या है एल एन एक्स, एल एन एक्स इज नेचुरल लॉगरिदम, और ये एग्जैक्टली मिरर है, किसका मिरर है, ई रेज टू एक्स का। जैसे a रेस टू एक्स का मिरर क्या था या इनवर्स क्या था, log ऑफ x टू द बेस a, वैसे e रेस टू x का मिरर क्या है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मिरर या इनवर्स है नेचुरल लॉगरिदम, log ऑफ x टू द बेस e, ठीक है। तो e जनरली अगर तुम देखोगे मैथमेटिशियंस यूज करते हैं e को, फिजिसिस्ट यूज करते हैं, साइंटिस्ट यूज करते हैं। तो जो भी तुम्हारे एक्सप्रेशंस है जो ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स में हम जो यूज करते हैं, इसमें ई का यूज ज्यादा है, ये नेचुरल लॉ का यूज इतना नहीं है। हाँ बट जो भी कैलकुलेशंस है जो इंजीनियर करता है, एक इंजीनियर रियल लाइफ में जो, जैसे कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर है तो वो स्ट्रक्चर के बारे में कैलकुलेशन करेगा, कोई भी सिविल स्ट्रक्चर के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसको नेचुरल सॉरी कॉमन लॉगरिदम ज्यादा काम आएगा, नेचुरल लॉगरिदम काम नहीं आएगा। लेकिन कोई साइंटिस्ट अगर कोई इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता है तो वो नेचुरल लॉगरिदम प्रेफर करेगा। तो ये अपनी अपनी चॉइस एक्चुअली, जिस फील्ड में जो ज्यादा एक्यूरेट होता है वो लोग प्रेफर करते हैं। प्रैक्टिकल फील्ड्स में
इंजीनियरिंग में कॉमन लॉगरिदम का यूज ज्यादा है, रिसर्च फील्ड में, मैथमेटिक्स में एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेशन जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे हमें कोई ऐसा फिजिकल चीज का कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये नेचुरल लॉग का यूज होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो दैट इज जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन कि भाई नेचुरल लॉग और नेचुरल एक्सपोनेंट्स कोई कुछ अलग नहीं है, कोई दूसरे एलियन नहीं है, ठीक है। वो भी लॉगरिदम और कॉमन लॉगरिदम जैसे ही है, ठीक है, और एक्सपोनेंट जैसे ही है, सिर्फ उनका शेप थोड़ा सा अलग है, उसमें बेस फिक्स हो जाता है कि भाई बेस ई है, बेस इज 2.718281828 एंड सो ऑन, जो भी है ई की वैल्यू, यूलर्स कांस्टेंट, ठीक है। ओके, काफी काफी लेक्चर दिया मैंने तुम्हें और तुमको काफी चीजें समझ में आई होगी, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। चलो अब ई के बारे में बात करते हैं। तो ई क्या है, ई की बात करते हैं। ई है एक इरेशनल नंबर अप्रोक्सीमेटली 2.7182818 एंड सो ऑन। इट इज नेम्ड आफ्टर एन 18th century Swiss mathematician लियोनार्ड यूलर, लियोनहार्ड यूलर, हार्ड, ओ माय गॉड, ओके, लियोनार्ड यूलर, इसको बोलते हैं यूलर्स कांस्टेंट, ठीक है। सो नंबर ई इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नंबर इन मैथमेटिक्स। As your mathematical studies progress from algebra to through calculus, algebra 2, actually algebra 2 is what you have been studying in class 9, ठीक है। इसमें तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, तुमने साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा क्लास 9 और 10 में, फिर तुमने ट्रिग्नोमेट्री का जो शुरुआत किया वो सब आ जाता है तुम्हारे अलजेब्रा 2 में, ठीक है। उसके बाद तुमने आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा विच इज आल्सो पार्ट ऑफ अलजेब्रा 2। हाँ, ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, बट हाँ ये सब आता है अलजेब्रा 2 में। एनीवेज, तो जब तुम अलजेब्रा 2 से कैलकुलस में जाते हो तो ई का जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जो अभी तक फॉर्मली तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, मैं रियली परेशान हूँ कि ये कोई डिस्कस नहीं करता यार किसी भी टेक्स्ट बुक में। तो हम लोग थोड़ा सा ये कर रहे हैं डिस्कस, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि तुम्हारी स्कूल का सिलेबस आगे भाग रहा है और मैं पीछे हूँ, जबकि हमने पहले स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज आई एम गोइंग इन डिटेल इन ईच एंड एवरी टॉपिक एंड आई एम रियली नॉट, आई डोंट रिग्रेट दैट, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारा यहाँ पे मकसद क्या है। हमें हर एक चीज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक बार समझना है लाइफ में, ठीक है, फिर उसको यूज करना है हमें बार बार। और तो एक बार जब समझना है तो अच्छे से समझेंगे ना हम लोग, फिर जब बार बार हमको यूज करना होगा तब हम कंफ्यूज होंगे तो अच्छा नहीं, ठीक है। सो एज योर मैथमेटिकल स्टडीज हैव नाउ प्रोग्रेस्ड एंड इट इज कमिंग टू द बिगिनिंग ऑफ कैलकुलस जो हम अब शुरू करने वाले हैं, you will discover that the role of e in mathematics is equal in importance to that of the number pi। पाई अभी तक कैसे यूज कर रहे थे तुम? तो पाई क्या होता है, तो कोई बोलता है 22/7 होता है या फिर 3.14, लेकिन 22/7 उसकी सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की। 3.14 एक्चुअली वो इरेशनल नंबर है, 14 के बाद बहुत सारी डिजिट्स 3.1415 ऐसा आगे आते जाता है, ठीक है। सो पाई है क्या? पाई इज द रेशियो बिटवीन सरकमफरेंस एंड डायमीटर शेयर्ड बाय ऑल सर्कल। सारे सर्कल में एक ही चीज कॉमन है, कोई भी सर्कल ले लो, सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2πr, या फिर सरकमफरेंस इज इक्वल टू पाई डी। सो पाई क्या हो जाएगा? पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर, सारे सर्कल के लिए, ठीक है। पाई इज ratio of any ratio of the circumference to the diameter of any circle। वैसे ही जैसे पाई है वैसे ही e is the base rate of growth shared by all continually growing processes। base rate of growth मतलब पाई, सॉरी, e is the base of all continually growing exponential functions। कोई भी ग्रोथ को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से दिखाते हैं, और वो सारे कंटिन्यूअली ग्रोइंग फंक्शंस जो है उसका बेस हमेशा ई होता है। और ये जो फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, दोज आर नेचुरली अकरिंग फिनोमेना। ये जो फंक्शंस है ई के जो पावर में एग्जिबिट होते हैं वो सब नेचुरली फंक्शनिंग, नेचुरली अकरिंग फंक्शंस है। नेचुरली अकरिंग फंक्शन मतलब क्या? जैसे कि growth rate in the cases of
कोविड-19 पेशेंट्स, कोविड-19 के जो पेशेंट्स है उनका ग्रोथ रेट क्या है, तो वो ग्रोथ रेट अगर तुम्हें समझना है तो सबसे इजीली समझ सकते हो विद द बेस ई, क्योंकि वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, सो ई इज द बेस रेट ऑफ ग्रोथ शेयर्ड बाय ऑल कंटिन्यूअली ग्रोइंग प्रोसेसेस। अच्छा, तुमने कुछ पैसे रखे हैं तुम्हारे बैंक में, ठीक है, और वो पैसे कंटिन्यूअली ग्रो हो रहे हैं। कैसे ग्रो हो रहे हैं? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। इंटरेस्ट कौन दे रहा है? बैंक दे रही है। तो वो पैसे किस रेट से ग्रो हो रहे हैं, वो सबसे इजीली कौन एक्सप्लेन करेगा पता है? ई। तुम बोलोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट वो तो बताता है ना, हाँ, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट भी ई पे बेस्ड है। आर यू शॉक्ड? आर यू सरप्राइज? हाँ, यस, ये ट्रुथ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी ई पे बेस्ड है। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा। तुम एक फॉर्मूला, तुम बोलोगे बहुत फेमिलियर फॉर्मूला है, 1+1/n द होल रेस टू n। ऐसा कुछ देखा है तुमने पहले? कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला में ऐसा कुछ यूज होता है? पैटर्न। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट का फॉर्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट की? पी ब्रैकेट 1+r/100 रेस टू n, यही है ना? ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने ये वाला पैटर्न यूज किया है। ये कैसे डिराइव हुआ है मैं इसके डीप में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ई कहां से आया ये तुम्हें बताता हूँ। ये जो ई की वैल्यू है वो कैसे मिली पता है? 1+1/n रेस टू n। इसमें अगर n की वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, पहले मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? 1+1 रेस टू 1। 1+1/1 रेस टू 1। 1+1/1 क्या होता है? 1+1। 1+1 क्या होता है? 2। 2 रेस टू 1 क्या आता है? 2। ठीक है, सो ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 है। अब मैं बोलूंगा कि n की वैल्यू बढ़ाओ, तो n की वैल्यू 3 करते हैं, चलो। 1+1/3 रेस टू 3। ठीक है, 1+1/1 किया था ना, अब 1+1/3 किया मैंने, डायरेक्ट 2 नहीं किया, 3 किया, तो 1+1/3 मतलब 1.33 रेस टू 3। अब तुम 1.33 रेस टू 3 कैलकुलेटर में करके देखो, इधर है क्या कैलकुलेटर? हाँ, राइट योर इक्वेशन। अरे क्या है ये, रुक जा, कैलकुलेटर किधर है? हम लोग यहाँ से निकालते हैं कैलकुलेटर। यस, ठीक है, आ गया कैलकुलेटर। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1.33 रेस टू 3, 1.33 का क्यूब, 1.33 रेस टू, स्क्वायर हो गया तो, रुको 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 रुको, रेस टू ऑल क्लियर किधर है? साइंटिफिक कैलकुलेटर किधर है? अरे क्या पका रहे हो यार? साइंटिफिक, अब हुई ना बात। 1.33 रेस टू 3, अभी रेस टू का, हाँ, ये रेस टू क्या, 1.33 रेस टू 3, 2.35 एंड सो ऑन। 2.35 आगे भी है ना कुछ, 2.352637। ठीक है। अच्छा, अभी मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे और बढ़ाओ इसकी वैल्यू। चलो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा, अरे रे रे रे, 1+1/10 करता हूँ रेस टू 10। दैट इज 1/10 क्या होता है? 0.1। तो मतलब 0.1+1 क्या होगा? 1.1 रेस टू 10। लेट्स सी 1.1, इसको क्लियर करो। चल भाई क्लियर, ये हट जाए। अच्छा, यहाँ से इसको रखते हैं यहाँ पे, 1.1 रेस टू 10, 2.59, कितना आया ये? 2.59 एंड सो ऑन एंड ऑन। ठीक है, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? ये जो n है ना, n मैं जितना बढ़ा रहा हूं, ये पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ये कहां पे जा रही है?
ये n को अगर मैं इन्फिनिटी करूंगा, अगर n को मैं इन्फिनिटी करूंगा, चलो हम लोग इन्फिनिटी क्या, हम लोग थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं ना, थोड़ा सा इसको 1 प्लस 1/1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन क्यों, 10 रेज टू 10 ठीक है, 1 + 10 रेज टू 10 करते हैं, कितना आएगा ये, ठीक है। अच्छा, इसको टू द पावर, इसका टू द पावर में लेता हूं, इसका टू द पावर में लेता हूं, कितना लिया था हमने, 10 रेज टू 10, 10 रेज टू, एक मिनट, ये मेरा नंबर था, ठीक है, कॉपी यहाँ पे डालता हूँ, रुक जाए यार, हाँ आ गया, ठीक है। इसको, ये नंबर को मैं लेता हूँ और इसका पावर में लगाता हूँ 10 रेज टू 10, तो इसके पावर में आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्चुअली इनवैलिड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें इसके इसके पास जगह ही नहीं है कुछ दिखाने का, इतना बड़ा नंबर हम ले ही नहीं सकते, एनीवेज थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं। सो 1/1000 ले ले, 10,000 ले लेते हैं, तो 10,000 में 4 जीरो होते हैं, तो 1/10,000 मतलब 0.0001, तो 1.0001, ठीक है, रेस टू कितना, 10,000, बेस 10,000 लिया था ना, तो पावर भी 10,000, 2.71814, वाओ, 2.71814। मैंने ई की वैल्यू क्या बताई थी तुमको, देखो यहाँ पे 2.718281183, ये बहुत नजदीक चला गया उससे। और तुम अगर ये n की वैल्यू को यहाँ पे बेस में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में और यहाँ पे पावर में अगर बढ़ाते जाओगे, इन्फिनिटी तक लेते जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, e की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो ये है तुम्हारा e। सो देर आर 5 नंबर्स दैट आर कंसिडर्ड द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स इन मैथमेटिक्स, समझ लेना, ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है मैथमेटिक्स के, जो है 0, 1, पाई, ई और आई। तुम सोचोगे आई क्या है, आई इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, आई क्या है, आयोटा, आई का मतलब आयोटा होता है, आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज √(-1), आई मतलब √(-1), तुम बोलो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाँ ये एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस इज, एक तो होता है, तुम्हें पता है ना, रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर में रैशनल इरेशनल आता है, और जो नॉट रियल नंबर होते हैं, नॉन रियल नंबर, ये वो है, दिस इज द प्राइमरी नॉन रियल नंबर, आयोटा। ये 5 नंबर मैथमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, ये तुम्हारे किसी सिलेबस में नहीं है ये सब, लेकिन ये सब सीखना जरूरी है ना, नहीं तो आगे तुम यही सारी चीजों में कंफ्यूज होते रहोगे। चलो और बताता हूँ मैं, तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में अब हम समझ सकते हैं, जो मैंने तुम्हें ग्राफ ऑलरेडी दिखा दिया है। तुम्हारा जो नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y = b⁻x, उसके बेस को अगर e से रिप्लेस कर देंगे तो हमें नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा, तो y = e⁻x नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। सो f(x)=e⁻x या फिर f(x)=expx, ये उसको डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे। अच्छा, यहाँ पे बेस हमेशा >1 रहेगा, किसमें, तुम्हारे नॉर्मल कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है। बट नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस फिक्स हो गया 2.71828 जो भी है, ठीक है, तो वो >1 ही है, इसलिए उसका जो ग्राफ है वो फिक्स रहता है, ऐसा जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसकी जो डोमेन है एक्स, वो सारे रियल नंबर है और रेंज हमेशा >0 रहेगी, ये भी हमें पता है। अच्छा, ये फंक्शन की खासियत क्या है, ये व्हाट इज द स्पेशलिटी, अमेजिंग स्पेशलिटी आई एम गोइंग टू टेल यू। सो f(x)=e⁻x is the only function where the slope of a tangent
to the curve at any point where the slope of the tangent to the curve at any point, ये जो कर्व है ना e raised to x का, उसके कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट लाइन समझ में आ रही है तुम्हें? टेंजेंट पता है ना तुमको क्या होता है? ये टेंजेंट का अगर स्लोप ढूंढोगे, ठीक है, at any point, slope of the tangent to the curve at any point is equal to the height of the curve at that point. Is equal to the height of the curve at that point. ठीक है, मतलब अगर सपोज मैं स्लोप यहां पे ढूंढना चाहता हूं, लेट मी ड्रॉ अ पॉइंट ओवर हियर, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक टेंजेंट बनाऊंगा, लेट मी ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, ये लाइन बन गई, एक मिनट, इसको मैं टेंजेंट बना के रखता हूं, ठीक है, ये थोड़ी सी लंबी लाइन बन गई, ठीक है, इसको रेड कर देते हैं। ओके, अब ये लाइन को मैं लेता हूं और इसको मैं यहां पे रखता हूं, इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा लाइन को, ठीक है, इसको जो जरा घुमा देते हैं हम लोग, हाँ ऐसा कर देते हैं ऐसे, और इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि जो रेड कलर की लाइन मैंने बनाई है वो इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये पॉइंट को भी मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, हाँ अब समझ में आ रहा है। तो सपोज इस पॉइंट पे मुझे ये टेंजेंट का स्लोप ढूंढना है, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, that is height of the curve at this point. What is the height of the curve at this point? The height is equal to, the height is equal to this much. This is the height. तुम्हें zoom in करके देखना है? Let me zoom in for you. Can you see the height now? So the slope of the slope of this tangent is equal to the height of this point from the distance of this point, the perpendicular distance of this point from x-axis. ठीक है, now what is slope actually? अगर तुम मुझे पूछोगे स्लोप का मतलब क्या है, अब तुम्हें स्लोप पता होना चाहिए, टेंथ के वजह से, टेंथ में पढ़ा है हमने, बट इफ यू डोंट नो व्हाट स्लोप इज राइज अपॉन रन, which is basically y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है। अच्छा, y2 minus y1 यहाँ पे क्या है, अगर तुम इस पॉइंट को देखोगे, अच्छा, तो तुम बोलोगे सर y2 minus y1 के लिए तो दो पॉइंट चाहिए हमें, मतलब दो वैल्यूज चाहिए, यहाँ तो एक ही वैल्यू है, तो स्लोप एट अ पॉइंट ढूंढने के लिए हमको कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा। अभी सिर्फ एक नॉलेज लेने के लिए ये समझ लो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कर्व, ठीक है। यहां पे जो उन्होंने एग्जांपल दिया है वो इस पॉइंट का एग्जांपल दिया है, तो इस पॉइंट की हाइट क्या है, इस पॉइंट की हाइट सपोज e है, ठीक है, तो ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन, उसका स्लोप क्या होगा, वो भी e होगा, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज ई रेज टू एक्स, दैट इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या होगा जो मैंने तुम्हें ग्राफ में बताया था, द इनवर्स ऑफ ई रेज टू एक्स नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज natural logarithmic function ln x, or log of x to the base e, natural logarithmic function. So this is your exponential function, this is your natural logarithmic function, both are inverse of each other. जैसे कि मैंने तुम्हें ग्राफ में ये समझाया था अभी कि log of
x to the base a is the inverse of what? a raised to x. a raised to x. यहाँ पे हम लोग y लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट तुम समझ सकते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस a है उसका इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन विद बेस a बन जाता है। तो अगर बेस e है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस क्या आ जाएगा? e, बेस सेम रहेगा। ठीक है, सो दे आर ऑल इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, सो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन इज ऑलवेज रिटर्न विथ बेस e, ln x उसका सिंबल है। यहाँ पे बेस फिक्स हो जाता है विच इज 2.1828 विच इज द वैल्यू ऑफ e, यूलर्स कांस्टेंट। ओके, ठीक है, ये अभी तक हमारे काम का नहीं है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, कन्वर्ट नेचुरल लॉग टू कॉमन लॉग, बट आई थिंक दैट नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में अभी हम कंफ्यूजन ना करें तो ही अच्छा है, बिकॉज दोनों अलग एंटिटीज है और उनका कॉम्बिनेशन जनरली हमारे किसी भी कोर्स के एप्लीकेशन में कहीं भी आता नहीं है। ठीक है, सो वी विल नॉट वरी अबाउट देम मच। जहां पे नेचुरल लॉग है, हम लॉगरिदम्स के ही रूल्स यूज करेंगे, जितनी प्रॉपर्टीज है वो, लेकिन जो बेस है वो ई रहेगा। ठीक है, जहां पे कॉमन लॉग है, मतलब बेस 10 है जो इंजीनियर्स यूज करते हैं, तो हम लोग बेस 10 के साथ ही सॉल्व करेंगे उसको। तो बेस क्या है उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो बेस ई है तो हमें उसको वैसी ट्रीटमेंट देनी है, बेस 10 है तो उसको वैसी ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट जो हमें अब आगे ये सारी चीजों के, क्योंकि हमने इतना नॉलेज ले लिया है, वी हैव लॉट एम्पल ऑफ नॉलेज नाउ रिगार्डिंग लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, तो अब थोड़ा सा उसको एप्लीकेशन में लाते हैं। और जो लास्ट पार्ट इसके बाद रहेगा दैट इज रीडिंग लॉगरिथमिक टेबल्स, दैट इज फाइंडिंग लॉग ऑफ अ नंबर प्रैक्टिकली यूजिंग द टेबल। टेबल का यूज करके किसी भी नंबर का लॉग या किसी भी कैलकुलेशन को हम, जो हमने पहले ही बोला था कि लॉगरिथम्स आर यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग अ कैलकुलेशन, it converts multiplication into addition, it simplifies a calculation, and how it is done वो हमें last part में करना है। ठीक है, let me check how much time is done. I don't want to make the video very long, so I will make this video, if it is too long, in 2 parts. Okay, so 1 hour is already completed in this video. I'm going to end this video, post it right now, you start watching it, and immediately I'm going to post the next video after I make it, maybe today itself or maybe by tomorrow, and I'm going to finish logarithm, and our next target before we start physics or anything else in mathematics, I will finish the basic calculus which I've been promising you since a long time now. I have to do that now, but after, since I was waiting for collecting the material for teaching you logarithm properly, so now I have all the material collected और पूरा लेसन प्लान रेडी है, मुझे पता है मुझे तुम्हें क्या सिखाना है एग्जैक्टली तो अब मैं इसके बाद तुम्हें बेसिक कैलकुलस मैं शुरू कर दूंगा, इसके बाद उसके वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। उसमें भी आई थिंक इंट्रोडक्शन के लिए आई थिंक मैं 2 वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, तो 2 या 3 वीडियो में पूरा कैलकुलस कवर हो जाना चाहिए। सो नाउ यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, प्री कैलकुलस तुम रेडी हो चुके हो, अब प्री कैलकुलस के साथ लॉगरिथम के बाद तुम कंप्लीटली रेडी हो जाओगे, फिर हम कैलकुलस में जंप कर देंगे। मतलब कैलकुलस का जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे माइंड में फिट करने के लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। तो ये वीडियो देखो, नोट्स ले लो, समझ लो अच्छे से, और हम जल्दी एक लाइव क्लास रखने वाले, जो मैं प्रॉमिस तुम्हें काफी टाइम से कर रहा हूँ, बट आई कैन नॉट डू इट बिकॉज वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट हो जाएगा। लाइव क्लास रखने से पहले मुझे मेरा बेसिक काम पहले खत्म करना है, उसके बाद हम सिलेबस ही टारगेट करेंगे। ठीक है, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून।